Good morning, student. Welcome to 10th standard geography subject, third chapter is physiography and drainage. Okay, in the previous video, we have studied the physiographic division of India. First is the Himalaya, and the second is North Indian plains, and third is the peninsula, and fourth is the coastal plains, and the fifth is the India island group. Okay, the previous video we have studied the physiographic divisions of India. Himalaya, the Himalaya is the one of the youngest fold mountain in the world. हिमालय ये एक यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है. देन दी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स the division lies between Himalaya mountains in the north and the peninsula in the south. Okay, the part lying to the east of the Arvalis lie in the basin of the river Ganga and is therefore known as the Ganga Plains. Okay, तो ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं तो वो बिटवीन हिमालय माउंटेन्स इसका जो डिवीज़न किया गया है तो वो डिवीज़न किया है तो वो किसके बीच में से, हिमालय माउंटेन के बीच में, नॉर्थ एंड दी पेनिसुला इन दी साउथ. इंडियन पेनिसुला या प्लेट्यूस है वहाँ से उनके बीच में से ये लाइज होता है. इट इज़ एक्सटेंड फ्रॉम द राजस्थान टू पंजाब. तो ये जो एक्सटेंड हो रहा है ये राजस्थान से लेके पंजाब तक. ओके, इट इज़ मोस्टली अ फ्लैट लो लेइंग एरिया. ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है इट इज़ मोस्टली फ्लैट लो लेइंग एरिया. देन द पार्ट लेइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरवलीज लाई. तो ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है इनके ये जो डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, द पार्ट लेइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरवलीज लाई. ओके, अरवलीज लाई. देन बेसिन ऑफ द रिवर गंगा is therefore known as the Ganga Plains. Okay, then next is the peninsula. The area laying to the south of the North Indian Plains and tapering towards the Indian Ocean is called Indian Peninsula. Okay, so now in this video we will study the coastal plains. Okay, so coastal plains. Okay, जो coastal plains होते हैं, there are the two coastal plains in the western coastal plains and the eastern coastal plains. Okay, so let us start the study. Okay, let us begin to start the study of the coastal plains. Okay, coastal plains. India is blessed with the long coastline extend from approximately 7,500 kilometer. Okay, so India is blessed a long coastline extending for approximately 7,500 किलोमीटर. जो इंडिया को जो कोस्टलाइन जो एरिया है इंडिया का वो एक्सटेंडिंग फ्रॉम 7,500 किलोमीटर. इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिसुला का जो इंडिया के मैप में जो पेनिसुला पार्ट है तो वो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिसुला. ओके, so its western and eastern coastline shows remarkable dissimilarities means different या another. okay, so its western and eastern coastline show remarkable dissimilarity. जो western and eastern parts है coastline का, eastern and western part है तो ये क्या शो करता है, dissimilarities, different. okay, the western coast borders the Arabian Sea. western coast border. ओके, जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न कोस्ट की जो बॉर्डर्स है वो अरेबियन सी. इट इज़ बाय एंड लार्ज ऑफ रॉकी कोस्ट. ओके, रॉकी कोस्ट. व्हाट इज रॉकी कोस्ट? रॉकी कोस्ट इज एन interradial area of the sea coast where solid rock predominates. Okay, rocky coast, it means a rocky coast is an interradial area of sea coast and where is the solid rock
where solid rock is predominant. Okay, at places spores means hill area. Okay, at place post taking up from the western ghats have extended right up to the coast. Western ghats and the western ghats have extend. तो ये जो स्पोर्स टॉकिंग फ्रॉम है, तो ये जो प्लेस है ये वेस्टर्न घाट्स से एक्सटेंड होता है टू द कोस्ट. इट्स विड्थ इज ऑल्सो लेस. उसकी जो विड्थ है वो क्या है, कैसे लेस है. Rivers originating from western ghats are short and swept, and hence they from estuaries and not deltas. Estuaries means जो outfall below means दहाना होता है. तो ये जो rivers originating from the western घाट, यहाँ से जो वेस्टर्न घाट से जो भी रिवर्स ओरिजिनेट होती है short from the swept and the hence they are estuaries and not deltas. Okay, so next the eastern coast borders the Bay of Bengal. जो ईस्टर्न कोस्ट है. ओके, फर्स्ट जो वेस्टर्न कोस्ट है तो वो वहाँ से जो अरेबियन सीज है, वेस्टर्न कोस्ट पे जो अरेबियन सीज है तो वहाँ पे जो इट इज by and large a rocky coast. Okay, so this part is the eastern coast. The eastern coast borders the Bay of Bengal. Okay, ईस्ट पार्ट में कौन सा कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट में बे ऑफ बंगाल कोस्ट है, सी कोस्ट. ओके, इट हैज़ फॉर्म एज अ रिजल्ट डिपोजिशनल मीन्स बहते जल, हवा, हिमानी तथा समुद्री ज्वार तथा जलधाराओं द्वारा परिवहित शैल पदार्थ का किसी स्थान पर क्या होना, जमा होना. इट मीन्स डिपोजिशनल. ओके, वर्क ऑफ रिवर्स, डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स में जो वर्क जो बहते हवा या जल, हिमानी तथा समुद्र ज्वार जलधाराओं से परिवहित जो शैल पदार्थ होते हैं तो वो किसी स्थान पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं. ओके, मेनी ईस्ट फ्लोविंग रिवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट दिस कोस्ट. मेनी ईस्ट फ्लोविंग, जो जितने भी ईस्ट फ्लोविंग रिवर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न टू ईस्टर्न घाट से, ईस्टर्न घाट्स मीट दिस कोस्ट. तो वो क्या करते हैं, उसकी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में उनकी क्या होती है, मीट होती है, मतलब एक दूसरे से वो मिलती है. बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड, क्योंकि बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड, वहाँ पे क्या है, स्लोप, जेंटल स्लोप. रिवर्स फ्लो एट लोअर वेलोसिटीज एंड डिपॉजिट द sediments brought with them at the coast. As a result, deltas are found along this coast. Okay, क्यों फ्लोइंग जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स जो रिवर्स मिलती है उनकी मीट होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड. बिकॉज क्यों मिलती है वहाँ पे, जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड, द रिवर्स फ्लो एट लोअर वेलोसिटीज, उनकी जो फ्लोइंग की जो वेलोसिटीज होती है तो वो क्या है, रिवर्स फ्लो एट लोअर वेलोसिटीज, उनकी वेलोसिटीज है, स्पीड है वो लोअर है. एंड डिपोजिट द सेडिमेंट्स ब्राउट विद देम एट द कोस्ट. एज अ रिजल्ट, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डेल्टाज आर फाउंड अलोंग दिस कोस्ट. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज द island group. ओके, द island group. India has a many small and large island along the coast of the mainland. Mainlands means उनकी मेन भूमि, मुख्य भूमि, नेचुरल ग्राउंड्स. ओके, नेचुरल ग्राउंड्स. तो इंडिया में ऐसे स्मॉल एंड लार्ज island along the coast mainland पे होते हैं. ओके, these are the included in the coastal island groups. तो वहाँ पे these are included in the coastal island, तो वहाँ पे क्या इंक्लूडेड, कोस्टल island ग्रुप इंक्लूडेड होते हैं. बिसाइड इंडिया हैज़ 2 large group of island.
ओके, तो इंडिया में ऐसे 2 लार्ज ग्रुप बनाया है इसलैंड के। वन इज ऑफ द अरेबियन सी एंड इन बे ऑफ बंगाल। ओके, सो एक है अरेबियन सी एंड इन बे ऑफ बंगाल। द इसलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज लक्षद्वीप, whereas the island in the Bay of Bengal are called the Andaman and Nicobar. Okay, so let us see, beside India has 2 large group island। तो इंडिया के लार्ज ग्रुप बनाया है इसलैंड। वन ऑफ इज द अरेबियन सी, फर्स्ट इज द अरेबियन सी एंड द सेकेंड इज द बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी आर नोन एज लक्षद्वीप, Arabian Sea are known as Lakshadweep, whereas the island in the Bay of Bengal are called the Andaman and Nicobar Island। ओके, तो जहाँ पे अरेबियन सी है तो वो लक्षद्वीप ये इसलैंड है, एंड whereas the island the Bay of Bengal is called the Andaman and Nicobar Island। ओके, most of the island in Lakshadweep are atoll island। atoll island means an atoll is a ring shape, इसका जो शेप होता है वो कैसे होता है, रिंग शेप। कोरल रीफ इसलैंड और सीरीज ऑफ इस्लेट्स एंड अटॉल सराउंड्स अ बॉडी ऑफ वाटर कॉल्ड अ लिगॉन। समटाइम्स एटॉल्स और लिगॉन्स प्रोटेक्ट अ सेंट्रल इसलैंड। वो क्या करता है, एटॉल इसलैंड मीन्स कि जो प्रोटेक्ट करता है सेंट्रल इसलैंड को, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। They are small in extent and not very high, but वो small होता है but very small, they are small in extent and not very high, मतलब ज़्यादा दूर तक वो extent नहीं होता है, high होता है, high नहीं होता है, small रहता है, extent भी ज़्यादा नहीं रहता है, और उनकी जो height है वो height भी उसकी मतलब कम रहती है, not very high मतलब हाई भी नहीं होते हैं। ओके, इसलैंड इन दी अंडमान ग्रुप आर मेनली वॉल्केनिक इसलैंड। इसलैंड ये जो इसलैंड है इन अंडमान ग्रुप मीन्स कि जो बे ऑफ बंगाल में, ये देखो, द इसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल आर कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार इसलैंड। तो ये वॉल्केनिक ग्रुप्स में उसको वॉल्केनिक इसलैंड कहते हैं। इसलैंड इज द अंडमान ग्रुप आर मेनली वॉल्केनिक इसलैंड। They are large with hills in the interior parts of includes an island called the Barron Island। Barron Island, it means Barron Island is a island located in the Andaman Sea। Okay, it is the only confirmed active volcano, मतलब वहाँ पे एक्टिव वोल्केनो एक्टिव रहता है इन साउथ एशिया एंड दी ओनली एक्टिव वोल्केनो। साउथ एशिया में ये जो अंडमान निकोबार है तो वह बेरॉन इसलैंड, जिसको एक्टिव वोल्केनो इस बेट, ये जो इसलैंड है यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोस होते हैं। इसके इंटीरियर पार्ट्स दी इंक्लूड्स इज एन इसलैंड बैरॉन इसलैंड। उनके जो इंटीरियर पार्ट्स है, दे आर इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंक्लूडेड is an island called Barron Islands। Okay, which has the only active volcanoes in India। there are atolls in the Nicobar group too। तो जो ये जो इंडिया में जो ये जो बैरॉन इसलैंड है यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोस होता है। ओके, इन इंडिया देर आर एटॉल्स इन द निकोबार ग्रुप्स। तो एटॉल्स और जो है ये निकोबार ग्रुप में भी होते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द ब्राज़ील फिजियोग्राफी। द ब्राज़ील फिजियोग्राफी इज डिवाइडेड इनटू 5 groups। ओके।